इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशो ऑन ब्रेटोन साइकिल। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशो ऑन ब्रेटोन साइकिल। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशो ऑन ब्रेटोन साइकिल एंड net work output. So we know the efficiency of the Breton cycle. Breton cycle 1 minus 1 upon rp to the power gamma minus 1 upon gamma. So this is the efficiency of Breton cycle. So this is my TS diagram. In TS diagram, the representation of the Breton cycle is this one. This is 1, 2 and 3 and 4. So this is the isentropic process or isentropic compression process, WC, and this is my isentropic expansion process, turbine work done, an amount of heat supplied at the constant pressure, an amount of heat rejection at the constant pressure. ठीक है. So suppose this is the maximum temperature limit with respect to the material conditions or turbine material conditions or metallurgical properties. So this is my temperature T max conditions and this is my T minimum temperature. So T max and T minimum temperature limiting condition. So if we increase the pressure ratio, suppose if we increase the pressure ratio, then it will proceed like this. So suppose it is 3 2 double dash and 3 double dash and this is my 4 double dash. We increase the pressure ratio, the mean temperature of heat addition, it increases. ठीक है. If we increase the pressure ratio, then you see 2 and 2 dash and 3 dash. So it try to achieve the Carnot cycle efficiency. So as we increase the pressure ratio, the Breton cycle, it approaches the Carnot cycle efficiency. Okay. So the mean temperature in cycle again, I will try to draw this again. So this is my TS diagram. In TS diagram, suppose this is my TS diagram. ठीक है. 1, 2, 3 and 4. This is the maximum temperature limiting conditions. Maximum temperature limiting conditions. If we increase the pressure ratio, the graph converted like this. So this is my 2 double dash and 3 double dash. So it approaches the Carnot cycle efficiency. Again we increase the pressure ratio. So 2 dash and 3 dash. So as we increase the pressure ratio, so Breton cycle try to achieve the Carnot cycle efficiency. This is my 4 double dash and 4 dash within two temperature limits. This is my T minimum and T maximum. So T minimum or T maximum, as we increase the pressure ratio, so the Breton cycle try to achieve the Carnot cycle efficiency. Suppose in cycle 1, 2, 3, 4, in cycle 1, 2, 3, 4, the T mean temperature of heat addition, ठीक है, mean temperature of heat addition. So mean temperature of heat addition is nothing but H3 minus H2 enthalpy drop divided by S3 minus S2, and the mean temperature of heat rejection. Mean temperature of heat rejection in this process, mean temperature Tm2, mean temperature of heat rejection. So mean temperature of heat rejection is nothing but H4 minus H1 divided by S4 minus S1. So here at low pressure ratio, ठीक है, the mean temperature of heat addition
little difference between the, so at the low pressure ratio, the mean temperature Tm1, mean temperature of heat addition is little greater than Tm2, mean temperature of heat rejection. ठीक है. सो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन और मीन टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजेक्शन में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है जब आपका लो प्रेशर रेशो है. और लो प्रेशर रेशो जब होगा आपका प्रेशर रेशो इट इज and when the pressure ratio approaches the pressure ratio is Rp is equal to 1 or unity, then efficiency of the cycle it starts like this. So efficiency of the cycle it is 0 and Rp is equal to 1 or unity, then efficiency of the Brayton cycle is 0 and W net also 0. तो W net का ग्राफ हमारा कैसा आता है, ये आता है ग्राफ. तो यहाँ पर W net का ग्राफ आएगा W net. So it is like this. So W net Rp is equal to 1. So Rp is equal to 1. So Rp जब हमारा प्रेशर रेशो 1 होगा और यूनिटी होगा तो उस केस में ग्राफ हमारा एफिशिएंसी का ग्राफ जो है इस तरीके से आता है. एफिशिएंसी इट विल बी 0 एंड प्रेशर रेशो इट ऑल्सो विल बी द 0. When Rp increases, if Rp means increases, then mean temperature Tm1 approaches to T maximum temperature 1, 2, 3 T3 और T maximum. ठीक है. And Tm2 approaches to T1 or T minimum temperature. So in this way, and Rp is equal to Rp max. तो उस केस में क्या होगा, efficiency will be maximum. जब Rp is equal to Rp max है तो उस केस में क्या होगा, it will try to achieve the Carnot cycle efficiency. तो Carnot cycle, तो Brayton cycle efficiency it will be equal to the Carnot cycle efficiency. But W net again it becomes 0. तो यहां पर W net क्या होगा, Rp max में फिर से 0 होगा. जब प्रेशर रेशो हमारा Rp इज इक्वल टू यूनिटी है तब भी हमारा नेट वर्क डन 0 है, और Rp इज इक्वल टू Rp मैक्स है तब भी हमारा नेट वर्क डन 0 है. एफिशिएंसी क्या है, Rp इज इक्वल टू 1 पर यूनिटी पर ये 0 है, और Rp इज इक्वल टू Rp मैक्स पर ये कार्नोट साइकिल को अप्रोच करेगा. T मैक्स हायर लिमिट T मैक्स को अप्रोच करेगा. ठीक है. तो उस केस में ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी की तरह एक्ट करेगा. तो so in this condition so when Rp is equal to Rp max, then Brayton cycle efficiency is equal to Carnot cycle. तो Brayton cycle क्या है, 1 minus Rp to the power gamma minus 1 upon gamma, और 1 minus the minimum temperature over maximum temperature. This is the Carnot cycle efficiency of Carnot to temperature limit की बात कर रहे हैं तो हम. तो यहां से एक रिलेशनशिप आएगा
तो ये रिलेशनशिप क्या आएगा, आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू टी मैक्सिमम ओवर टी मिनिमम। टी मैक्स क्या है हमारा, T3 है और ये T1 है। सो आर पी टू द पावर T3 ओवर T1 की पावर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन या गामा अपॉन गामा माइनस 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, आर पी मैक्स मेरा निकला। तो मैक्सिमम प्रेशर रेशो क्या है, T3 ओवर T1 की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, ऑप्टिमम प्रेशर रेशो एट विच वी गेट द मैक्सिमम वर्क डन। तो मैक्सिमम वर्क डन कैसे निकालेंगे, नाउ सो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वर्क डन, so in Carnot cycle, Breton cycle, this is my Breton cycle, 1, 2 and 3 and 4. This is the compression work done and this is the turbine work done. So W net is nothing but WT minus WC. So this is my CP. तो T3 minus T4 minus T2 minus T1. So from here, the CP is equal to T3. Now T4, we have a relationship PV to the power gamma is equal to C and PV is equal to MRT. So वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे। So T का हमारा क्या है, V की जगह T बाई पी टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से हमारा T2 ओवर P1 या T2 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 टू द पावर गामा, T1 टू द पावर गामा, P1 टू द पावर गामा माइनस 1। सो यहाँ से आपका आ जाएगा T2 ओवर T1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 ओवर P1 टू द पावर गामा माइनस 1। सो T2 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सो ये मेरा क्या है, आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। सिमिलरली T3 ओवर T4, T3 ओवर T4 मीन्स आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो यहाँ से T4 की वैल्यू रख देते हैं। तो T4 इज इक्वल टू T3 आर पी टू द पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा एंड माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1 आर पी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा और माइनस 1 प्लस T1। तो ये आ गया मेरा W नेट। अब W नेट को क्या करेंगे, W नेट मैक्सिमम मिनिमा ओवर डेल आर पी, इट मस्ट बी 0। तो यहाँ से इसको 0 करेंगे, तो यहाँ से एक कंडीशन से निकल कर आएगी ऑप्टिमम प्रेशर रेशो की। इसको हमने किया प्रेशर रेशो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस T3 और ये आपका आ जाएगा माइनस प्लस और ये गामा माइनस 1 अपॉन गामा और आर पी टू दी पावर माइनस गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ओके, और ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये आ गया माइनस T1 और यहाँ पे क्या है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा और आर पी टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 और ये 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखते हैं ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो T3 ओवर ये आएगा आर पी टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा प्लस 1 इज इक्वल टू T1 आर पी टू दी पावर गामा माइनस 1 माइनस गामा ओवर गामा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, T3 ओवर T1 और आर पी टू दी पावर ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 माइनस गामा ओवर गामा प्लस गामा माइनस 1 प्लस गामा ओवर गामा। सो T3 ओवर T1 आर पी टू दी पावर, या इसको क्या कर लेंगे, गामा माइनस 1 माइनस गामा प्लस गामा माइनस 1 प्लस गामा। तो ये गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर आया आर पी इज इक्वल टू T3 ओवर T1 और यहाँ पर कितना आएगा, गामा ओवर 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1। तो ये मेरा आ गया आर पी ऑप्टिमम। ठीक है, तो इससे पहले रिलेशनशिप मेरा क्या आया था, इससे पहले जो रिलेशन आया था आर पी मैक्स का, तो आर पी मैक्स हमारा क्या था, तो यहाँ से आर पी ऑप्टिमम प्रेशर रेशो, ऑप्टिमम प्रेशर रेशो
ये क्या हो जाएगा, आर पी मैक्स का स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, ये एक रिलेशन निकला हमारा। जो ऑप्टिमम प्रेशर रेशो होगा वो मैक्सिमम प्रेशर रेशो का स्क्वायर रूट होगा। अब डब्ल्यू नेट वो मैक्सिमम कैसे निकलेगा वो देख लेते हैं। तो सी पी वहाँ हमारा क्या था, T3 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T1, ये था रिलेशन। ठीक है, आप देख लेना पीछे। सो यहाँ से T3 और T4 की जगह हमने क्या रखा था, सो T4। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो T4 हमारा क्या आया था, तो T4 हमारा जो आया था वो ये आया था, इस साइकिल में देखेंगे तो। ठीक है, ये हमारी साइकिल थी 1 2 3 एंड 4। सो रिलेशनशिप हमारा क्या आया था, पी वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी और पी वी इज इक्वल टू एम आर टी से पी टी टू दी पावर गामा और पी टू दी पावर गामा। तो यहाँ गामा माइनस 1, तो टी टू दी पावर गामा और पी टू दी पावर गामा माइनस 1 और टी वन टू दी पावर गामा पी वन टू दी पावर गामा। सो टी टू ओवर टी वन P2 over P1 to the power gamma minus 1 upon gamma means RP to the power gamma minus 1 upon gamma. So similarly T3 over T4 RP to the power gamma minus 1 upon gamma ये आया था। तो यहाँ पर T4 की जगह हमने क्या लिखा था, T3 RP to the power माइनस गामा माइनस 1 upon gamma, माइनस T2 की जगह हमने क्या लिखा था, T1 RP to the power gamma minus 1 माइनस गामा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस T1 गामा प्लस हो गया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, T3 अब RP की जगह क्या रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, T3 ओवर T1, T3 ओवर T1। ठीक है, T3 ओवर T1 की पावर गामा ओवर 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1 इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा, इसके साथ माइनस साइन एसोसिएटेड है, माइनस T1। सो T1 RP की जगह T3 ओवर T1 की पावर गामा ओवर 2 टाइम्स ऑफ गामा माइनस 1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा और प्लस T1। ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका CP T3 माइनस ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये T3 और ये स्क्वायर रूट में पलट जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ T1 ओवर T3 आ गया, माइनस T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो T3 ओवर T1 स्क्वायर रूट प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका T1 आ जाएगा और यहाँ से कट के यहाँ पर आपका T3। तो ये आ जाएगा CP T3 माइनस अंडर रूट ऑफ T3 T1 माइनस ऑफ अंडर रूट T3 T1 प्लस T1। ठीक है, तो यहाँ से जो अल्टीमेटली आएगा नेटवर्क डन वो क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा फॉर्मूला एक्सप्रेशन इसका, W नेट मैक्सिमम इज इक्वल टू CP, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ T3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T3 T1 और ये आपका क्या है T1 इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी हो गया। तो CP अंडर रूट ऑफ T3 माइनस T1 की स्क्वायर, और यू कैन राइट अंडर रूट ऑफ T मैक्स माइनस अंडर रूट ऑफ T मिनिमम का स्क्वायर। तो ये मेरा मैक्सिमम वर्क डन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, RP ऑप्टिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RP मैक्स एंड नेट वर्क डन आपका ये होगा CP अंडर रूट ऑफ T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम वर्क डन फाइंड आउट कीजिए। और दूसरा ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफिशिएंसी और RP, व्हेन RP इज इक्वल टू यूनिटी देन ग्राफ इज लाइक दिस, मीन्स एफिशिएंसी इज 0, एफिशिएंसी क्या होगी 0 होगी। RP इज इक्वल टू RP मैक्स, तो एफिशिएंसी हमारे क्या होगा, ये मीन टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर को अचीव कर लेगा, तो उसमें एफिशिएंसी जो होगी ब्रेटॉन साइकिल की एफिशिएंसी वो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के इक्विवेलेंट आती है। दूसरा हमारा वर्क डन वाला ग्राफ देख लेते हैं। तो वर्क डन में क्या होगा हमारा W नेट। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से आता है, जब RP इज इक्वल टू यूनिटी है तो W नेट कितना है हमारा, ये 0 है, और RP इज इक्वल टू RP मैक्स है
तब भी हमारा क्या है, डब्लू नेट आर पी इज इक्वल टू 1 पर, एंड डब्लू नेट इज इक्वल टू 0 एंड आर पी इज इक्वल टू आर पी मैक्स, तो उस पर भी 0 है। और जब हमारा आर पी इज इक्वल टू, ये आर पी इज इक्वल टू आर पी ऑप्टिमम है, तो हमारा डब्लू नेट क्या होगा, डब्लू नेट आपका ये मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, आरपी ऑप्टिमम की वैल्यू याद रखना है, इनमें रिलेशंस याद रखने हैं। सो इफेक्ट ऑफ प्रेशर रेशो ऑन ब्रेटोन साइकिल। थैंक यू।